We have, very strong relations with Russia. We have it with Europe. We have it with Ukraine as well. We have it with the United States. India would be one of the very few countries who has very good relations, very strong relations with the United States, with Israel, with Iran, and with the Gulf countries. So we have, and we have real interest there. So for us, the challenge in this situation is how to maintain all these relationships, how to protect our equities, how to advance our interests. विदेश मंत्री जयशंकर का ये अंदाज इस वक्त खूब चर्चा में। अमेरिकी विदेश मंत्री के सामने जयशंकर ने खुलकर रूस से मजबूत रिश्तों का जिक्र किया। दरअसल अमेरिका लंबे समय से भारत और रूस के करीबी रिश्तों को लेकर चिंता जताता रहा है। खासकर ट्रंप की वापसी के बाद अमेरिका लगातार भारत पर इस बात का दबाव बनाता रहा कि भारत रूसी तेल ना खरीदे। लेकिन जयशंकर के ताजा बयान को अमेरिका के लिए एक साफ संदेश माना जा रहा। भारत अपनी रणनीतिक स्वतंत्रता से कोई समझौता नहीं करेगा। दरअसल प्रेस कॉन्फ्रेंस में मार्को रूबियो के सामने जयशंकर ने कहा कि भारत दुनिया के उन गिने चुने देशों में शामिल है जिनके अमेरिका से रिश्ते अच्छे हैं, इजराइल से रिश्ते अच्छे हैं, ईरान से अच्छे हैं और यहाँ तक कि रूस और खाड़ी देशों के साथ भी मजबूत रिश्ते। उन्होंने कहा कि भारत इन रिश्तों को जीरो सम गेम की तरह नहीं देखता, यानी एक देश के साथ संबंध मजबूत करने के लिए दूसरे देश से दूरी बनाना भारत की नीति नहीं है। भारत का मकसद सभी देशों के साथ अपने हितों को संतुलित तरीके से आगे बढ़ाना है। उन्होंने कहा कि मौजूदा वैश्विक परिस्थितियों में भारत के सामने बड़ी चुनौती यही है कि वो अपने सभी रिश्तों को संतुलित तरीके से संभाले और हर मोर्चे पर अपने हितों की रक्षा करे। जयशंकर ने साफ कहा कि आज की दुनिया में भारत के हित इतने व्यापक हो चुके हैं कि उसे कई देशों के साथ एक मजबूत संबंध बनाए रखने पड़ते हैं। India would be one of the very few countries who has very good relations, very strong relations with the United States, with Israel, with Iran, and with the Gulf countries. So we have, and we have real interest there. So for us, the challenge in this situation is how to maintain all these relationships, how to protect our equities, how to advance our interests. And we don't look at it as a zero-sum game. We have to manage and actually take care of all these accounts. So having said that, I would say there are some general principles by which we would approach this region. Obviously, we want peace and stability in the region. For us, the welfare, the well-being of the diaspora is crucial. 3, we want to see energy prices go down because we are a very big importer of energy and much of it comes from that region. 4, as I stated in my remarks, we very much are in favor of safe and unimpeded maritime commerce through the region. And what we want to see is really the markets open up there. We don't want to see constraints. So these would be the principles with which we would approach that region. And in a way, of course, every situation is unique. But I think we will find increasingly in the world that there will be conflicts or difficult situations where India, because our interests are growing, we have relationships with all the parties involved. I mean, we are seeing this in the Ukraine conflict as well, where we have, very strong relations with Russia, we have it with Europe, we have it with Ukraine as well, we have it with the United States. And then the question is, how do you manage them, all of them? So in that sense, yes, it is multi-alignment because today's India has that range of interests which require us to manage multiple accounts. इस दौरान यूक्रेन युद्ध का भी जिक्र करते हुए विदेश मंत्री ने कहा कि भारत के रूस के साथ मजबूत रिश्ते हैं, लेकिन साथ ही यूरोप, यूक्रेन और अमेरिका के साथ भी भारत के अच्छे संबंध। ऐसे में भारत का काम किसी एक पक्ष के साथ खड़ा होना नहीं बल्कि सभी रिश्तों को संतुलित रखना। उन्होंने कहा कि यही आज के भारत की मल्टी अलाइनमेंट नीति। पश्चिम एशिया पर बोलते हुए जयशंकर ने कहा कि भारत के लिए
उस क्षेत्र में शांति और स्थिरता बेहद जरूरी है। उन्होंने कहा कि भारत की बड़ी आबादी खाड़ी देशों में काम करती है, इसलिए वहां रह रहे भारतीयों की सुरक्षा और भलाई भारत की प्राथमिकता है। इसके अलावा भारत दुनिया का बड़ा ऊर्जा आयातक देश है और उसकी बड़ी जरूरतें पश्चिम एशिया से पूरी होती हैं। इसी वजह से भारत चाहता है कि ऊर्जा की कीमतें नियंत्रित रहें और बाजार खुले रहें। इस दौरान विदेश मंत्री ने समुद्री व्यापार की सुरक्षा पर भी जोर दिया। उन्होंने कहा कि भारत सुरक्षित और बिना रुकावट वाले समुद्री व्यापार का समर्थन करता है और चाहता है कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर किसी तरह की पाबंदी न लगे। कुल मिलाकर विदेश मंत्री जयशंकर के इस बयान ने साफ कर दिया कि भारत अब वैश्विक मंच पर अपनी स्वतंत्र विदेश नीति के साथ आगे बढ़ रहा है। अमेरिका के साथ मजबूत रिश्तों के बावजूद भारत रूस समेत दूसरे देशों के साथ अपने संबंधों को भी उतनी ही अहमियत देता रहा है और आने वाले समय में भी भारत अपनी रणनीतिक स्वायत्तता बनाए रखेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत।